लोग आए हैं। We are come to meet him, to join with him. हालेलुया। Hallelujah. मस्तक से वो अभिषेक फ्लो होता है, That anointing flows from the head. वो सामर्थ और वो बुद्धि और वो ज्ञान और वो सामर्थ है ना, स्वर है ना, हेड से मतलब मस्तक से वो फ्लो होता है। That power, that authority, everything flows from that head. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए हम जो मसीह के देह है, मस्तक से जुड़ने के लिए तैयारी से हम लोग कलसिया में आना जरूरी है। That's why all of us who are body, we should come here to be joined with the head. और पूरा मन और पूरा हृदय और पूरा ध्यान अगर हम प्रभु की तरफ देंगे तो हम प्रभु से बहुत सारी चीजें पाएंगे। And if we give our entire attention wholeheartedly to the Lord, we will receive so many things from Him. हमारा जीवन बदलते जाएगा, आशीर्वादित होते जाएगा। Our lives will be transformed, changed, and will be blessed. आमेन। Amen. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding this? तो मोबाइल रख दिया क्या बाजू में? Have you kept your mobile on? बहुत सारे Flight कंपनी mode? में ऐसा रूल है। There are many companies, there are rules. वो बोलते हैं ये तुम्हारा मोबाइल इधर गेट में जमा कर दो फिर अंदर जाने का। They say that you have to deposit your phone at the gate and then only you can go inside. दुनिया के लोग ऐसा नियम लगाते हैं कि उनके कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं है। They have put such a rule in their company that mobile phones are not allowed there. तो राजाओं का राजा के उपस्थिति में हम लोग कैसे क्या अलाउ कर सकते हैं? So how can we allow it in the presence of the King of Kings? हालेलुया। Hallelujah. बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई है ना विचलित होते हुए हम पूरा ध्यान प्रभु की तरफ लगाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। So we will give our entire attention to Lord Jesus and our lives will be transformed. आमेन। Amen. हम लोग कल बाइबल स्टडी कर रहे थे। We were doing Bible study yesterday. 4 बजे से 8:30 बजे तक ऐसा प्रभु चलाया। हालेलुया। From 4 till 8:30, Lord led us wonderfully. आमेन। Amen. मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति बाइबल स्टडी के लिए आए। I want every person to come for Bible study. आमेन। Amen. क्योंकि बाइबल स्टडी की जगह पर है जहां पर तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारे जीवन से टूट जाएंगे। Because Bible studies is at such a place that when you come there, your bondages will be broken. क्योंकि पवित्र आत्मा वचन का ऐसा प्रकाशन देगा जो तुमने कभी जाना नहीं है। Because the Holy Spirit will give you such a revelation that you never known in your life. और तुम्हारा जीवन बदलते चला जाएगा। And your life will keep transforming. हालेलुया। Hallelujah. मसीह ही हमारा जीवन है, Jesus is our life. दूसरा कुछ नहीं है। There is nothing else. ये दुनिया से हमको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। There is no benefit for us in this world. हमारा लाभ केवल और केवल मसीह के अंदर है, मसीह को जानने में है। Only Christ is beneficial for us. Knowing Him is the best thing. हालेलुया। Hallelujah. पिता ने और एक मेरे अंदर डाला है कि हर शनिवार को हम उपवास प्रार्थना करें। And Lord has put in my heart that every Saturday we shall do fasting and prayer. हालेलुया। कितना लोग तैयार है? How many of you are ready? पेट ही बहुत बड़ा अपना अड़खलन बनता है। Our belly is our biggest hindrance. हालेलुया। Hallelujah. शनिवार को उपवास प्रार्थना करके 4 बजे जब बाइबल स्टडी के लिए बैठेंगे, हालेलुया, And we shall be fasting and we'll be sitting in Bible study. ऐसा जीवन बदल जाएगा। आग लगा देंगे हम लोग, आग लगाने वाले बन जाएंगे। And we shall bring fire on this world. अभी बिना फास्टिंग प्रेयर के स्तुति आराधना में ऐसा आग आ रहा है। And without fasting and prayer, there are so many things are happening in praise and worship. सोचो कि उपवास प्रार्थना करके संडे का जब वर्शिप होगा तो क्या होगा। And just imagine if we do fasting and prayer and then we worship the Lord in that same thing, what will happen? हालेलुया। Hallelujah. पूरा पिंपरी चिंचवाड़ हिल जाएगा। Entire Pimpri Chinchwad will be shaken. लोग ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर आएंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। People will come in searching what is happening in this place. हालेलुया। Hallelujah. हर एक के अंदर ये उत्साह आ रहा है। क्या क्या Everyone should. Are you excited for this? क्या 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 ये सुन रहा मैं। Are you just listening? Like, what am I listening? हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम मसीह का जीवन गंभीरता का जीवन है। The life in the Lord is a serious life. इसको हल्के से अगर हम लेंगे तो हमारा जीवन हल्का हो जाएगा। If we take it lightly, our life also will be lightly. लेकिन इसको प्रभु का जीवन को अगर हम सीरियसली गंभीरता से लेंगे, हमारा जीवन अलग रहेगा, अलग हो जाएगा। And if we pay so much honor, so much seriousness to this life, then our life also will be different. कल एक वचन बहुत अच्छा अमीश ने कल शेयर किया था। Yesterday, Brother Amish shared one verse. हम लोग पढ़ेंगे वो यूहन्ना का 8वां अध्याय। We'll go to John chapter 8. यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, 14 वचन अगर हम पढ़ते हैं। We'll go to John chapter 8 verse 14. यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं
तो मेरी गवाही ठीक मेरी गवाही ठीक है। Jesus answered and said to them, even if I bear witness of myself, my witness is true. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं। For I know where I came from, where I am going. ध्यान से सुनो भाई बहनों, Listen to this very carefully. यीशु क्या कह रहा है? यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो मेरी गवाही एकदम ठीक है। Here Lord is saying, if I bear witness of myself, my witness is true. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं For I know where I came from और मैं कहां जाने वाला हूं। and where I am going. हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन हम देखते हैं, We'll go to one more verse. उत्पत्ति का We'll go मेरे ख्याल to से 16वां अध्याय yes. Let's go to Genesis chapter 16, और उसका 8वां वचन। verse 8. यहां पर हम पढ़ते हैं, हे सारे की दासी हागार, And he said, Hagar, Sarai's maid, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? where have you come from and where are you going? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। She said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. लेकिन उसको पता नहीं वो कहां जा रही है। But she doesn't know where she is going. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कितने लोगों को ये कुछ ऐसा अंदर कुछ हुआ? How many of you are able to get something out of this? समझा कि नहीं समझा? Are you not understanding? इतना हार्ड है क्या ये? Is this so hard? हालेलुया। Hallelujah. यीशु कह रहा है, मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां जाने वाला हूं। Jesus is saying, I know where I came from and where I am going. परमेश्वर से जो जन्मा है उसको पता होना चाहिए वो कहां से आया है, The one who is born of God, he should know where he has come from. और उसको पता होना चाहिए वो कहां जा रहा है। And he should know where he is going. बहुत सारे विश्वासियों को सिर्फ मालूम है कि वो प्रभु से आए हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं मालूम नहीं है। Many believers know that they came from God, but they don't know where they are going. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अगर हमको पता नहीं है कि हम जाना कहां है तो हम कोई भी रास्ता पकड़ेंगे। If we don't know where we have to go, we will take any way. जो भी रास्ता सामने दिखेगा, अरे चलो इधर, अरे उधर, अरे इधर चलो। We will just be casual with that our choices. We'll say, okay, this is the way, we'll take it. This is the way, we'll take it. लेकिन अगर पता है कि मुझे कहां जाना है तो हम वही रास्ता पकड़ेंगे। But if we know where we have to go, we will take the same way. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding? और जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा, आप अपना फोकस मोबाइल को रखो बाजू में और पूरा ध्यान दो, समझ में आएगा। Those who are not understanding, you should keep your mobile aside and just stay focused. ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। This is very important. ये समय चला जाएगा, This time will pass. लेकिन ये समय में जो कुछ तुम अगर रिसीव करोगे तुम्हारा अनंत काल के लिए फायदा होगा। But whatever you receive in this time, that will remain with you for eternity. एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर से जन्मा है, A born again believer must know that he is born of God. और उसको पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर के पास जाने वाला है। And he should know that he is going back to God. अगर मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं तो परमेश्वर के पास जाने वाला रास्ता पकड़ूंगा। If I am going back to God, I will pick the way that goes back to God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में। Because there are many ways in this world. अगर मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ते पे जाना है तो मैं कोई भी रास्ता पे जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, क्यों भटकता रहूंगा? If I don't know which way to take, then I will pick any way because there are many ways in this world and I'll get distracted. हालेलुया। Hallelujah. ये सारे जो थी है ना, वो जो हगार जो थी, उस सारे का जो नौकरानी थी वो उसके पास से भाग के आई वो। And this maid Hagar, she fled from her mistress Sarai. और वो स्वर्ग का दूत पूछ रहा है, तू कहां से आई? And that angel is asking her, where have you come from? और कहां जाने वाली है? And where are you going to go? वो बोल रही कि मैं मेरे मालकिन से भाग कर आई हूं। And she says that I am fleeing from my mistress Sarai. वो बता रही कि मैं कहां से आई हूं, वो बता रही है, She is telling where I have come from, लेकिन उसको पता नहीं वो कहां जा रही है। but she doesn't know where she will be going. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हमको पता होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं, But we should know where we are going. हम कहां से आए हैं। Where we have come from, हम परमेश्वर से आए हैं we have come from God और हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। and we are going back to God. प्रभु कहता है दो रास्ते हैं। Lord is saying there are two ways. एक बड़ा रास्ता है जो नाश की तरफ ले जाता है और एक पतला रास्ता है जो जीवन की तरफ ले जाता है। There is a broad way that leads to destruction and there is a narrow way that leads to life. जिसको पता है कि उसको कहां जाना है वो सही रास्ता चुनेगा।
he who knows that he has to choose life, he will take the right way. आमेन। Amen. लेकिन जिसको पता नहीं है तो वो फिर बड़ा रास्ते में जाएगा, And the person who does not know that where he has to go, he will take the broad way. और बड़ा रास्ते में नाश है। And there is a destruction in broad way. हालेलुया, Hallelujah. है ना। मसीह का जीवन जो है पतले रास्ते पे चलने के लिए बनाया गया है। And the life in Christ is made to choose the narrow path. आमेन। Hallelujah. संसार के लोग वो छोटे रास्ते में नहीं चलते, The people of this world do not walk on that narrow path. वो बड़े रास्ते में चलते हैं। They always choose the broad वहां path. पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, There are many options. बहुत सारे, कुछ भी कर सकता है, ये वो कुछ भी, There are many options. You can do lot of things. लेकिन उसका अंत नाश है। But the end of that road is destruction. लेकिन है ना, परमेश्वर का जो रास्ता है, जीवन का जो रास्ता है, वो नैरो है, एकदम सकरा रास्ता है। And the way that leads to life is very narrow. वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते, There are not many options. सिर्फ यीशु मसीह वहां पर रहता है, There is just one person standing there, that is Lord Jesus. और वहां पर पवित्र आत्मा मदद करने के लिए रुका रहता है। And there is Holy Spirit with you to help you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? एक वचन हम देखते हैं जो प्रभु ने बताया मुझे। We'll go to one more verse that Lord gave me. यूहन्ना का ही, Let's go back to John. और उसका 30 से हम पढ़ते हैं। Let's go to John chapter 30. 8:3। 8:30. Okay. वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। इकतीस से पढ़ते हैं। John chapter 8 verse 31 onwards. It says, Then Jesus said to those Jews who believed him. यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Then Jesus said to those Jews who believed him, If you abide in my word, you are my disciples indeed. और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And you shall know the truth, and the truth shall make you free. आमेन। Amen. विश्वास करने वालों से प्रभु बात कर रहा है। Now Lord is talking to those people who believed in him. उन लोगों से प्रभु कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Lord is telling them that only if you abide in my word, then you are my disciples indeed. उसके बाद तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको बंद मुक्त करेगा। And you shall know the truth, and the truth shall make you free. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास करना काफी नहीं है, Only believing is not enough. है ना। बहुत लोग विश्वास करते हैं सिर्फ, There are many people, they just believe. यीशु पे विश्वास करता कि हाँ, Do you believe in Jesus? They say, yes, I believe. पीढ़ी पीढ़ी से मैं विश्वास करता, I am a generational Christian. है ना। मेरा जन्म ही क्रिस्ती परिवार में हुआ। I am born in a Christian family. यीशु में विश्वास करता कि हाँ, करता ना। Do you believe in Jesus? They say, yes, I believe Jesus. विश्वासी लोगों से प्रभु बात कर रहा है That's why Lord is talking to those who believed in him. कि यदि तुम विश्वास करने वाले मेरे वचन में अगर बने रहोगे, That you, though you who are believing in me, if you abide in my word, तभी तुम मेरे चेले बनोगे, then you will become my disciples. और उसके बाद तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। And after that, you will know the truth, and then truth will make you free. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब विश्वासी को सत्य पता नहीं है, That means believers don't know the truth. है ना। सिर्फ विश्वास जो कर रहे हैं उनको सच्चाई पता ही नहीं है। That means those who are believing, they don't know the truth. इसीलिए बहुत सारे विश्वास करने वाले लोग तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं। That's why even believers today, they are in so many bondages. वो कलीसिया में आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बंधनों में फंसे हुए हैं। They are Christians, they are believers, they come to church, they participate in praise and worship, but still they are in so many bondages. क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे हैं। Because they are not knowing the truth. हालेलुया। Hallelujah. सत्य को जानने के लिए वचन में बना रहना जरूरी है। To remain in Lord's word, you need to know the truth. आमेन। Hallelujah. सत्य को जानने के लिए तुमको वचन में बने रहना पड़ेगा। To know the truth, you need to abide in the word. वचन में अगर नहीं बने रहोगे तो तुमको सत्य समझ में नहीं आएगा। If you will not abide in the word of the Lord, then you will not know the truth. आमेन। Amen. और सत्य को नहीं जानने की वजह से बहुत सारे लोग है ना बंधन में है और उसको लग रहा है कि ये नॉर्मल लाइफ है।
And because some people do not know the truth, they are in bondages and they think that this is normal, this is fine. अब ये लोग जो जिन विश्वासी लोगों से प्रभु ने बात किया वो लोग क्या कह रहे हैं? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और हम कभी किसी के दास नहीं हुए. And they answered him, the believers, they answered him, we are Abraham's descendants and we have never been in bondage to anyone. फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? How can you say you will be made free? हालेलुया. Hallelujah. है ना, क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो पीढ़ी पीढ़ी से क्रिस्ती हैं. They are saying, okay, we are generational Christians. है ना, हमारे घराने में बहुत सारे सेवक हो उठे. There are many servants of the Lord in our family. फिर तू कैसे कह रहा है कि हम लोग अभी भी बंधन में हैं, स्वतंत्र होने का जरूरत है हमको? Then how can you say that you are in bondage, you need to be free? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या भाई? Are you understanding? हर एक व्यक्ति को नया जन्म पाकर मसीह का चेला बनना जरूरी है. Every person needs to be born again and needs to become a disciple of Jesus. क्योंकि परमेश्वर का कोई भी पोता या पोती नहीं है. Because God does not have grandchildren. हर एक परमेश्वर का सिर्फ बेटा है और बेटी है. God only has sons and daughters. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अब ये लोग को प्रभु बोल रहा है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा. Now Lord is telling these people, those who believe in Him, that you abide in my word and then you'll know the truth and the truth shall make you free. मतलब ये लोग बंधन में है और इनको पता नहीं कि बंधन में है. That means these people are in bondage, but they do not know that they are in bondage. प्रभु को पता है कि ये लोग बंधन में है. Lord knows that they are in bondage. इसीलिए प्रभु कह रहा है That's why Lord is telling them कि मेरे वचन में बने रहो, that abide in my word. तभी तुम जानोगे सत्य को और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा. That then only you will know the truth and the truth shall make you free. आगे यीशु कहता है उनसे. And then Lord says to them, यीशु ने उनको उत्तर दिया, Lord answered them, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है. and Lord Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. और आगे लिखा है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. हालेलुया. Hallelujah. क्या बोल रहा है? जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, दास है. And now Jesus is saying here that he who sins, he is a slave of sin. और एक दास जो रहता है वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता. And a slave cannot free himself. कर सकता है क्या? Can he? एक गुलाम है वो अपने आप को छुड़ा सकता है क्या? There is a slave. Can he make himself free? कोई आना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए. Someone needs to come and make him free. हालेलुया. Hallelujah. हम सबका जन्म पाप की गुलामी में हुआ है. And we all have been born in sin. हालेलुया. है Hallelujah. ना, स्वभाव से हम पाप के गुलाम थे. By nature we have become, we are sinners. आमेन. Amen. उसकी गुलामी में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है. And to make us free from this slavery, Jesus Christ came. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? प्रभु कैसे छुड़ाता है? प्रभु बोल रहा है, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया तो मेरे वचन में तुम बने रहो. And how Lord makes you free is He's telling you that if you believe in me, abide in my word, and then you'll know the truth, and truth shall make you free. है ना, वचन के द्वारा ही हमको सत्य समझ में आएगा. That means only through the word of God we will know the truth. दूसरा कोई तरीका नहीं है. There is no other way. केवल परमेश्वर का वचन में बने रहने से ही हमको सत्य समझ में आएगा और सत्य हमको स्वतंत्र करेगा. Only by abiding in His word we shall know the truth. अब परमेश्वर के वचन में बने रहने का मतलब क्या है? Now what is the meaning of abiding in His word? कि परमेश्वर का वचन में बने रहने का मतलब है हमारे सोच में वचन होना चाहिए. That means word should be in our thoughts. अपने कल्पनाओं में वचन होना चाहिए. The word should be in our imagination. है ना, कहाँ हम मतलब जो भी हम जीवन जी रहे हैं वचन हमारे पास रेफरेंस करके होना चाहिए. Whatever life we are living, it should be based on the word of God. मसीह के जब हम चाल चलन हमारे जीवन में जी रहे, रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, वहां पर वचन होना जरूरी है. That means the life that we are living daily, it should be based on the word of God. अगर वैसा नहीं है If that is not the case, तो हमको सत्य नहीं पता चलेगा. that means we do not know the truth. आमेन. Amen. आगे बोल रहा है प्रभु, Then the Lord says, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता.
I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me because my word has no place in you. इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। But you seek to kill me. मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखता हूं, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। I speak what I have seen with my father, and you do what you have seen with your father. आमीन, Amen. है ना। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि तुम अपने, है ना, तुम 44 वचन अगर हम पढ़ते हैं, If you go to verse number 44, वहां पर लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. वह तो आरंभ से हत्यारा है He was a murderer from the beginning और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, and does not stand in the truth, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। because there is no truth in him. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, When he speaks a lie, he speaks from his own resources, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। for he is a liar and the father of it. आमीन। Amen. यीशु उनको बोल रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, Now Jesus is telling that you are of your father, the devil, क्योंकि तुम वचन में बने नहीं रह रहे हो, because you are not abiding in the word. सिर्फ विश्वास तक सीमित है। You are just limited to believing. शैतान भी विश्वास करता है ना, Even devil believes. अपने से स्ट्रांग बिलीवर है वो, Devil is a strong believer than you. थरथराता है वो, ऐसा भी लिखा है। He trembles. He believes so much that he trembles. हम लोग सिर्फ विश्वास करते, ट्रम्बल नहीं करते, We just believe, we don't tremble. इतना डिफरेंस है। That is the difference. हालेलुया। Hallelujah. विश्वासी नहीं, चेला बनने के लिए बुलाहट है। God haven't called us to be believers. God has called us to be disciples. इसलिए परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले बनो। That's why you should be the one who love His word. हालेलुया। Hallelujah. जो वचन से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। The one who loves the word, he loves God. हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रेम वचन के ऊपर अगर हो गया तो हम वचन में दिन रात मनन करते रहेंगे। If we fall in love with the word of God, we shall be meditating in the word of God day and night. और वचन के अंदर का जो रस है, वचन के अंदर का जो जीवन है, जो प्रकाशन है, हमारे जीवन को बदलते रहेगा। And the precious juice that we get from the word of God, the sweetness that will keep transforming our life. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उपवास प्रार्थना का बहुत जरूरत है। That is the reason I am saying there is a big need for fasting and prayer. उपवास प्रार्थना में तुम्हारे अंदर वचन का चाहत ऐसा बढ़ जाएगा, प्रार्थना का चाहत ऐसा बढ़ जाएगा कि तुम बोलोगे नहीं मुझे यही चाहिए। And in this fasting and prayer, the desire for word will grow so much that you will be craving for it more. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ नहीं है, वचन के अंदर जीवन है, सामर्थ है। Because there is nothing greater than the word of God. There is life, there is power in the word of God. हालेलुया। Hallelujah. ये वचन हमारे जीवन को बदलता है। This word transforms our life. ये वचन हमको बताता है कि हमको ये जीवन को कैसे जीना है। And this word tells us how we should be living our life. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह वो वचन है। And Jesus Christ is that word. वचन में बने रहने का मतलब है यीशु मसीह में बने रहना। Abiding in the word means abiding in Christ. यीशु का जीवन को अभ्यास करो, यीशु का जीवन को अध्ययन करो Study the life of Jesus Christ. कि कैसा यीशु जीवन जी रहा था पृथ्वी के ऊपर, कैसा जिया उसने, That how he was living his life on the earth. उसी के ऊपर ध्यान लगाओ, उसी को अध्ययन करो और वैसा ही तुम चलने लगोगे। Just study his life, look at his life, and you will find yourself living like him. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्योंकि अगर हम वचन के अंदर रस नहीं लेंगे, वचन से प्रेम नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं रहेगी। And if we will not take any interest in the word of God, there are many things that we will never know. और हमको नहीं मालूम होने की वजह से हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें करेंगे जो हमको बंधन में लेकर आती है। And because we do not know many things, we will keep doing those things that bring us in bondage. हालेलुया। Hallelujah. है ना? जानना जरूरी है भाई बहनों। Knowing the word is very important. मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। Knowing Christ is eternal life. है ना? एक विश्वासी के अंदर वो चाहत होना चाहिए कि मैं सुबह उठकर प्रभु तेरे चरणों में बैठूंगा, मैं मुझसे बात कर प्रभु, मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, वचन को समझना चाहता हूं। ये चिकाटीपना और ये चाहत हर एक विश्वासी के अंदर आना जरूरी है। A believer should be a person who gets up in the morning and he should be praying to God, Lord, I want to know you, speak to me, give me your word.
this inconsistency, persistence should be there in a believer. ऐसा लाइफस्टाइल अगर तुमने अपना डेवलप नहीं किया तो तुम बॉन्डेज में रहोगे. If you will not develop your life like this, then you will continue in the bondages that you are in. तुम फिर एक रिलीजियस फैरिसी के जैसा अपना जीवन जी रहे हो, Then you will be living your life like a religious Pharisee. है ना. सिर्फ वचन मालूम था, फैरिसी लोगों को सिर्फ वचन मालूम था, लेकिन वचन का सामर्थ उनके जीवन को बदल नहीं पाया. Pharisees knew the word of God in and out, but the power of the word could not transform their life. वचन के अंदर जो आत्मा है उसको वो लोग समझ नहीं पाए, उसको ग्रहण नहीं कर पाए. They could not see the spirit of God that is in the word of God, and that's why they could not get transformed. लेकिन हम सब का जन्म उस अविनाशी बीज परमेश्वर के वचन से, उसके आत्मा से हमारा जन्म हुआ है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वस्ती करता है. But we all of us are born of that seed of God, God's word, and that same spirit dwells in all of us. तो हमको चाहिए, हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो पहला जगह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में दे. That's why it is very important that we all should give our first place in our life to Lord Jesus. तुम्हारे जीवन में सबसे मुख्य जगह कोई है तो वो सिर्फ यीशु का होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब चीजें आना चाहिए. In your life, always the first place should be Lord Jesus, and then everything else comes. ऐसा अगर तुमने बना लिया अपना जीवन का लाइफस्टाइल, मैं तुमको गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम दुनिया से अलग जीवन जियोगे. And if you set your life like this, I can guarantee you that you will start living your life entirely different from this world. दुनिया की कोई बुराई से तुमको कोई असर नहीं होगा. No evil in this world can affect you anymore. हालेलुया. Hallelujah. तुमको कोई धोखा देगा तो तुमको असर नहीं होगा. If anyone betrays you, that will not impact you. तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरुद्ध होंगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Your entire house will go against you, but that will not impact you. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि तुमने अपना हृदय को परमेश्वर के ऊपर लगाया जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है. Because you have set your heart on the Lord who loves you truly. हालेलुया. Hallelujah. जिसने हमारे लिए सूली पर जान दिया, जो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या हम उससे वैसा प्रेम नहीं करना चाहिए क्या? The person who loved us, who died for us, shouldn't we be loving him the same way? अगर परमेश्वर पिता ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया है ना, इतना बड़ा कुर्बानी करके हमको इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए सब कुछ त्याग कर अपने आप को दे दिया, क्या हमको भी वैसा करना नहीं चाहिए क्या? If God came in this world and he died for us, he gave his sacrifice for us, shouldn't we be sacrificing our life for him? हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए. In our life, the most important person should be only Lord Jesus and nobody else. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हारा पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, यीशु मसीह. Your husband, your wife, your mother, father, your mother-in-law, daughter-in-law, your son, your daughter, nobody should be more important than Lord Jesus. तुम चुन लो. You make a choice. प्रभु मुझे तू चाहिए. That Lord, I want you. मरियम के समान चुन लो. Make a choice like Mary. मरियम ने चुन लिया वो जगह को Mary chose that place. कि प्रभु मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सुनकर चलना चाहती हूँ. That Lord, speak to me. I want to hear you and I want to walk on your word. हालेलुया. Hallelujah. जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसकी हर एक बातों को सुनकर चलते हैं. Those who love the Lord listen to his every word and walk on his word. और उनका जीवन रूपांतरित होते जाता है, बदलते जाता है. वो एक ही स्तर पर नहीं रहते, आगे बढ़ते रहते हैं. And their life is transforming. They will never be at same place. They will be keep growing. हालेलुया. Hallelujah. उनका जीवन फलदायक होते रहता है, वो मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं. Their life becomes fruitful and they become conformed to the image of Son of God. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे लोग शैतान के बंधन में फंस नहीं सकते. Such people can never be trapped by devil. क्योंकि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाले होते हैं. Because those people who know their God, they shall do great exploits. हालेलुया. Hallelujah. तो मसीह को जानो, परमेश्वर को जानो, वचन से प्रेम करने वाले बनो. That's why you should know the Lord, know his word and know God the Father. हालेलुया. Hallelujah. 2 दिन मैं घर पे था और सब लोग गए थे घूमने के लिए. I was at my home for 2 days. There was no one at home. लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के संगति में 2 दिन मेरा ऐसा गया. हालेलुया. And I want to thank the Lord that in his presence I really enjoyed these 2 days. हालेलुया. Hallelujah. मैं तो चाहता था कि हफ्ता भर ऐसा मिला तो और भी अच्छा रहता था. And I was thinking that I should be getting more time like this, like entire week.
आमेन। Amen. है ना, प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन के साथ पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, हालेलुया, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। And there is nothing greater than this world, that Lord, His Word, His Spirit, and fellowship with Him. हालेलुया। Hallelujah. ये चीज का तुलना तुम दुनिया की कोई भी चीज के साथ नहीं कर सकते। You can never compare this with anything else in this world. हालेलुया। Hallelujah. हमसे वो सच्चा प्रेम करता है, He loves us truly. वो हमको कभी धोखा नहीं देता, He never betrays us. वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। He never leaves us. He never forsakes us. तो ऐसा परमेश्वर से हमारा हृदय प्रेम करना चाहिए क्या नहीं? So shouldn't our heart be loving to this God? करना चाहिए क्या नहीं? Shouldn't क्या हमको सिर्फ उसका ही प्रेम चाहिए? तू करते जा प्रभु, तू करते करत जा, तू प्रेम फक्त मी बघतो, मी कसं पण जगतो, तू करत जा, ऐसा मांगता है क्या? should we just tell Lord, Lord, you keep loving us. You just keep loving me. I will love my life. I will do the way I live the way I want. You just keep loving मेरे me. को जो जो अच्छा लगता मैं सब करेगा प्रभु, लेकिन तू मेरे से प्रेम करने का, ऐसा? Lord, you keep loving me. I will do what I love, but you keep loving me. अरे कब तक बच्चा रहेंगे? Till what time we shall be children? एनक और एस्लिन दोनों बढ़ रहे हैं। अभी और एस्लिन दोनों बड़े हो रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. प्रौढ़ बनो, प्रभु से प्रेम करने वाले बनो। Become matured in the Lord. Become the people who love the Lord God. हालेलुया। Hallelujah. एक वचन तुम लोगों ने पढ़ा है कि मेरे को मालूम नहीं, There's one verse. I'm not sure whether you read it. पहला कोरिन्थियों का 16वां अध्याय 1 Corinthians chapter 16. और उसका 22 वचन तुम लोगों ने पढ़ा है कि मुझे पता नहीं। यहाँ पर लिखा है, पौल कह रहा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। Verse 22 it says, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. नया नियम में है, पुराने में नहीं। This is from New Testament. तुम बोलेगा यार पुराना नियम में था। You will say it's from Old Testament. मतलब इतना परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इतना सब हम जान रहे हैं, फिर भी हमारा हृदय अगर उससे प्रेम नहीं कर रहा है, क्या चाहिए? और That means if Lord has done so many things for us and still our heart is not loving Him, then what is the problem? समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कौन महत्वपूर्ण है भाई? Then what is important for you? जो हमेशा हमको हमारे साथ रहने वाला वो महत्व है, क्या कल परसों जो अपने को छोड़ के जाने वाला वो इंपॉर्टेंट है? Who should be more important for you? The one who loved you always, or the one who is with you right now but will be gone in 2-3 days? हालेलुया। Hallelujah. कौन सा रिश्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? Which relationship should be most important for us? आमेन। Amen. अगर प्रभु से मैं प्रेम कर रहा हूं तो मैं सचमुच आशीर्वादित व्यक्ति है। If I am truly loving the Lord, then I am really a blessed man. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं तो मैं किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकता। If I am loving God, then I cannot hate anyone. तुमसे नहीं होएगा, You cannot hate. कोशिश करके देख लो, You can try, it will not work. है ना? प्रभु से अगर तुम पूरा हृदय से प्रेम कर रहे हो, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी बुरा कुछ कर रहा है, तुम उससे नफरत नहीं करने को ही नहीं होएगा। If you're loving the Lord with all of your heart, then even if someone is hating you, you'll not be able to hate them back. तुम्हारा पति हो सकता, पत्नी हो सकता, बच्चा हो सकता, सास ससुर कोई भी हो सकता, नफरत होने कुछ नहीं हो रहा। मैं कोशिश कर रहा है प्रभु, लेकिन नहीं हो रहा। If you're loving the Lord God truly, then it can be any person in your family, your husband, wife, your children. You'll try to hate them, but that will not happen. That will not work. ये सत्य को तुम जानोगे तो तुम नफरत से आजाद हो जाओगे। When you'll know this truth, you'll be free from the hatred. हालेलुया। Hallelujah. दो ही कमांडमेंट परमेश्वर ने दिया। There are only two commandments that Lord gave. पहला यह है कि तू अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, पूरे शक्ति से, पूरे जीव से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम कर। First commandment is that love the Lord with all your heart, all your strength, all your mind. और फिर दूसरा ऐसा है कि तू जैसा अपने आप से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। And the second commandment is love your neighbor as you love yourself. अगर तुम पहला कमांडमेंट रख रहे हो तभी तुम दूसरा रख पाओगे। If you are keeping the first commandment, then only you will be able to keep the second one. जो नफरत में चल रहा है वो पहला कमांडमेंट नहीं रख रहा है। The one who is walking in hatred, he is not keeping the first commandment. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ट्यूबलाइट पेट रहा है क्या? हालेलुया। Hallelujah. जैसा अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
Love your neighbor as you love yourself. जैसा पिता परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया है, तुम भी क्षमा करो। The way Lord God has forgiven you, forgive others also. कैसा होगा ये? How it will happen? जब तुम पहला प्रभु से प्रेम करने लगोगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीकर परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, उसके वचन में बने रहोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। Only when you'll know the Lord, you will be filled with His Spirit, you will be walking in His Word, then only you will be able to fulfill this commandment. तुम्हारे मन में कड़वाहट तुम रख नहीं सकते हैं, तुम क्षमा करोगे, दया करोगे, कृपा करोगे, ये तुम्हारे अंदर स्वभाव बन जाएगा। You will not be able to carry hatred in your heart for a long time because you will be growing in His Word and that nature will start manifesting in you. और उसकी वजह से तुम आशीर्वादित होगे। And because of that, you will be blessed. हालेलुया। Hallelujah. उसकी वजह से शैतान तुमको हाथ नहीं लगा पाएगा। And that is the reason Satan will not be able to touch you. उसकी वजह से बीमारी तुमको छू नहीं पाएगी। Because of that, sickness will not be able to touch you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बीमार हो गया प्रार्थना करो, बीमार हो गया कबूल करो। You fall sick and you want to be prayed. You fall sick and then you confess. मसीह से प्रेम करना शुरू करो, बीमारी तुमको कब छोड़ के जाएगा तुमको समझ में नहीं आएगा। Start loving Christ and you will never know when the sickness leaves you. उसके वचन में प्रेम में पड़ जाओ, वचन को दिन रात मनन करो, कब तुम्हारा जीवन बदल रहा है, गुस्सा जा रहा है, घमंड जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आएगा। When you start loving His Word and meditating on His Word, you will know that when you start getting blessed, you start having a different life. इतना सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। There is so much power in the Word of God. इसके अंदर जीवन है भाई बहनों। There is जीवन, there यही- is life in this Word. यही वचन से सारा सृष्टि बनाया गया है, From the same Word, this entire creation is formed. और यही वचन से हमारा नया जन्म हुआ है। And from the same Word we have been born. हालेलुया। Hallelujah. सबसे ज्यादा वचन से प्रेम करो। You should be loving His Word the most. तुम्हारा पति पत्नी माँ बाप बच्चे से बढ़कर वचन से प्रेम करो। You should be loving more the Word than your husband, wife, mother, father, children, everyone else. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो लोग तुम्हारे पति पत्नी माँ बाप भाई बहन कुछ भी वचन के विरोध में बोलेंगे तो तुम बोलोगे मैं तेरे साथ सहमत नहीं होता। And when they speak against you, against the Word, then you will be able to tell them, I do not agree with what you're saying. तुम बोलोगे, तुम ऐसा नहीं बोलोगे और तुम गलत हो, You will not say you are wrong. उसको प्रेम से बोलोगे You will tell them lovingly, कि देख भाई तेरे साथ अगर मैं सहमत हो गया ना हम दोनों गलत हो जाएंगे। if I agree with you, then we both will be wrong. उसको अकेले को मत बोलो तू गलत है, Don't tell the person alone that you are wrong. हट हो जाएगा वो। That person will get hurt. उसको बोलो देख भाई तेरे साथ अगर मैं सहमत हो गया ना हम दोनों गलत हो जाएंगे। If I agree with you, brother, then we both will be wrong. सांप के जैसा चतुर कबूतर के जैसा नम्र रहो। You should be wise like serpent and harmless like dove. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, ऐसा जीवन जीना है। This life we should be living. डायरेक्ट ब्लंटली किसी को बोलो मत अरे ऐसा वैसा, बोलेगा देख भाई वचन में ऐसा नहीं है और तेरे साथ अगर मैं सहमत हो गया ना अपन दोनों गलत हो जाएंगे। You should not be telling them bluntly. You should tell them that, brother, the word doesn't say like this. If I agree with you, we both will be wrong. इसलिए मैं तेरे साथ सहमत नहीं होता, मैं वचन के साथ सहमत हो रहा है। That's why I don't agree with you. I agree with the word. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसा जीवन मसीह ने हमको दिया है, This life Lord Jesus has given us. आजादी का जीवन। This is a life of freedom. प्रभु कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। And the word of God says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. है ना, दूसरा कोरिन्थियों का 3:17 कहता है 2 Corinthians 3:17 says, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. परमेश्वर आत्मा है, Lord is Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा है, Lord is Holy Spirit. और जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है And wherever the Spirit of the Lord is, वहां पर आजादी है, there is liberty. वहां पर स्वतंत्रता है। There is freedom. कहां है पवित्र आत्मा? Where is the Holy Spirit? तुम्हारे अंदर है। The Holy Spirit is in you. हालेलुया। Hallelujah. आजादी किधर होना चाहिए? Where should be the liberty? तुम्हारे अंदर आजादी होना The चाहिए। liberty should be in you. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये जानो, सत्य को जानो। You should know the truth. जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आया है, The day you were born again, the Spirit of the Lord came and started living in you. और उसने तुमको आजाद कर दिया है। And that same Spirit has
delivered you. हालेलुया, है Hallelujah. ना, आजाद हो गए हम लोग। You have been made free. जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है वहां पर बंधन आ नहीं सकता। Wherever the Spirit of the Lord is, a bondage cannot be there. लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर भी मैं बंधन में रहूंगा। And if I do not know that I have the Spirit of the Lord, I will be in bondage. इसीलिए वचन में बने रहने के लिए बाइबल कह रहा है। That is the reason Bible says you should abide in the word. ऐसा वचन में पढ़ता रहूंगा तो मुझे समझ में आएगा, अरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मतलब मेरे अंदर आजादी है, मैं बीमार नहीं रह सकता, बीमारी का बंधन में मैं कैसे रह सकता है। And if I am reading the word, if I am abiding in the word, I will know that I have the Spirit of the Lord. Then how can I be sick? I cannot be sick. तो बीमारी के विरुद्ध तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, And then your attitude towards the sickness and disease will change. परिस्थिति के विरुद्ध तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, Your attitude against the situation will change. तुम उसको अलग रीति से देखोगे, You will start seeing things differently. तुम उसको अपनाने की बात नहीं करोगे, You will not accept those things. तुम उसको रिजेक्ट करने की बात करोगे, You will start rejecting things. उसको हकालने की बात You करोगे। will start casting them out. अरे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, आजादी है, तू कहां से आ गया, निकल। And I should know that, no, the Spirit of the Lord is in me, liberty is in me. How can you come here? Get out from here. हालेलुया। Hallelujah. विश्वासी व्यक्ति है ना, दैविक आरोग्य में जीना जरूरी है। A believer of the Lord should live in divine health always. तुम्हारी हड्डियां मजबूत होनी जरूरी है, Your bones should be stronger. तुम्हारे जॉइंट सब कुछ मजबूत होना जरूरी है। Your joints should be stronger always. ये सत्य को तुम जानोगे, दैविक आरोग्य में तुम चलोगे। The day you will know this truth, you will start living in divine health. हालेलुया। Hallelujah. अगर बीमारी के बंधन में तुम हो तो तुम सत्य को नहीं जान रहे हो। If you are in bondage of sickness and disease, that means you are not knowing the truth. मसीह को जानने लगो, तुम्हारे अंदर से बीमारी का दम घुट जाएगा। The day you start knowing Lord Jesus Christ, the sickness in you starts suffocating. And हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? कैसा भी असाध्य बीमारी हो, डॉक्टर ने बोला रहेगा नहीं ये जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा, झूठ है वो। No matter what kind of sickness it is, no matter what whether doctor has said that this sickness you will have to carry throughout your life, that's a lie. हालेलुया। Hallelujah. जिस दिन तुमको यह सत्य समझ गया, उसी दिन तुम उससे आजाद हो जाओगे। The day you start knowing this truth, the same day you will be made free. हालेलुया। Hallelujah. मसीह ने तुमको आजाद कर दिया है, Lord Jesus has delivered you. है ना, बड़ा दाम चुका दिया उसने। He has paid a very huge price. कहां लिखा है? रोम करास का 8वां अध्याय में आएंगे। Let's go to Romans chapter 8. रोमियो का 8वां अध्याय, 2 वचन। Let's go to verse 2. यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. हालेलुया। Hallelujah. मूसा का जो व्यवस्था था वो लोगों को बंदी बनाता था, मारता था। The law of Moses was making people, he was putting people in bondage and that would kill them. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मसीह यीशु जब आया, When Lord Jesus came, उसने जीवन की आत्मा का व्यवस्था लेकर आया। He brought a new law. That's the law of Spirit of life. हालेलुया। Hallelujah. वो ऐसा व्यवस्था है जो हमको आजाद करने वाला व्यवस्था है। That is such a kind of law. That law makes us free. हमको मृत्यु के व्यवस्था से, पाप के व्यवस्था से आजाद कर दिया है मसीह यीशु ने। Through that law, Lord Jesus has made us free from law of sin and death. हालेलुया। Hallelujah. जब मृत्यु की व्यवस्था से हम आजाद हो गए हैं और पाप की व्यवस्था से आजाद हो गए हैं, तो हम फिर उसका अनुभव क्यों नहीं ले पा रहे? If we have been made free from law of sin and death, then why is it that we are not able to experience that freedom? क्योंकि हम वचन में समय नहीं बिता रहे हैं। The reason is that we are not spending time in the Word of God. प्रभु से बढ़कर और बहुत सारी चीजों ने हमको चोकअप कर दिया है। There are so many things which have choked our life that we are giving more importance than Lord. बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम तो फ्री है, तुमको टाइम है प्रार्थना करने के लिए, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। There are many people who say that brother, you have so much time, that's why you're spending time in word and prayer. I am very busy person. I go to office, I go to work. That's why I cannot do this. समय की जरूरत नहीं है, You do not need time. हृदय की जरूरत है। You need heart. हालेलुया। Hallelujah. जो थोड़े में वफादार है उसको बहुत दिया जाएगा। The one who is faithful with little, he will be trusted with more.
तुमको काम नहीं हो रहा है, समय नहीं मिल रहा, फिर भी उसमें से तुम थोड़ा समय निकाल कर प्रभु को खोज रहे हो, प्रभु तुमको ऐसा समय बढ़ा देगा. If you do not have time and still you are trying your level best to seek the Lord, to give him that word, love and attention, and that way Lord will make it such a way that your time will increase. हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है. Our God is the God who makes impossible possible. इच्छा करो, प्रभु मेरे को तेरे साथ में रहना है, तेरे वचन को मनन करना है, मेरे को समय चाहिए प्रभु. You should desire in your heart that Lord, I really want to spend time with you. I need more time. Please give me time. बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, Many people say that, I don't have time. लेकिन खाने के लिए बराबर टाइम मिल निकालते हैं. But they really have time to eat. कभी बोला क्या, नहीं मेरे को टाइम ही नहीं, खाते नहीं मैं. Do बोलता है क्या? they ever say, "Arey, I don't have time, please do you eat, I don't have time, I'll not eat." पेट ऐसा अलार्म देता है, टैया कैया पैया पैया पैया, भूख लगी भूख लगी. Your stomach starts giving you signals that you are hungry, hungry, hungry. या आग लगने दे काम को, चल ले क्या रे, बिरयानी बिरयानी. That time you'll not care whatever happens to work, but food is important. I have to eat. ये नाश होने वाला चीजों के लिए हम लोग इतना पैशन कर रहे, अविनाशी रोटी के लिए कैसा करना चाहिए. We have so much passion for things that are going to be destroyed, but so how much passion we should be having for the eternal word of God. हालेलुया. Hallelujah. खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए, दोनों का नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा. The word of God says that stomach is for food, food for stomach. Both will be destroyed, but the word of God abides forever. हालेलुया. Hallelujah. आत्मिक भोजन से प्रेम करो. You should be loving the spiritual food more. शारीरिक भोजन से तुम्हारा मन उठ जाएगा. You'll start hating the physical food. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? उपास प्रार्थना करने के लिए तुमको मन होगा. Then you'll start having desire to do fasting and prayer. जब जीवन की रोटी तुम खाने लगोगे तो तुम्हारा शारीरिक रोटी में मन नहीं लगेगा. The day you'll start feasting on the spiritual bread, your heart will start hating the physical bread. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, क्या बढ़ना चाहते हैं? Do you still want to remain children or you want to grow? प्रौढ़ अगर बनना है तो यही एक रास्ता है. If you want to mature in the Lord, this is the only way. कि वचन का मनन करो, वचन को प्रेम करो. प्रभु मुझे तू चाहिए, तू मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. You should meditate on the word, you should love the word, and you should tell the Lord that, Lord, I only want you. प्रार्थना का एक समय निकालो. Take out some time for prayer. कभी भी, जब भी तुमको मिलता है, Anytime when you have time, उठो, प्रभु के साथ बैठो, अकेला बैठो. get up and sit with the Lord alone. हालेलुया. Hallelujah. ये एक आदत बनाओ. Make this a habit. ये अगर नहीं बनाया तो तुम्हारा आत्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो पाएगी. If you do not make this habit, then you'll never grow in your spiritual life. तुम ये आदत बनाओगे, प्रभु से प्रेम करोगे, बहुत सारा बंधनों से तुम ऐसे छूटते जाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा, अरे मेरे को आजकल गुस्सा क्यों नहीं आ रहा मेरे पति के ऊपर, इतना ये टेढ़ा करता है फिर भी. When you'll start making this आश्चर्य होगा. when you start making these changes in your life, you will start transforming, and one day you'll realize that why am I not getting angry with people? हालेलुया. Hallelujah. हमारा प्रभु यीशु ऐसा था. Our Lord Jesus was like this. अकेला भोर को चला जाता था पहाड़ के ऊपर, पिता के साथ रहता था वो. He used to climb the mountain early morning to be with God. जो पाप से अनजान था वो अगर प्रार्थना कर रहा है, हम लोग जो पाप में पीएचडी करके पैदा हुए, हमको प्रार्थना का कितना जरूरत होना चाहिए. Jesus was not born in sin. Still, he used to spend so much time with the Lord. We who are born in sin, how much more we should be spending time with the Lord? समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अगर वचन में समय बिताओगे, दिन रात है ना उसके अंदर रहोगे, प्रभु से प्रेम करोगे, बहुत सारी चीजें प्रभु प्रकट करेगा. If you'll start loving the Lord, if you'll start spending time with Him, there are many things that Lord will start revealing to you. पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मिक आंखों को खोलेगा और गहरी और रहस्यमय बातों को तुमको प्रकट करेगा. Lord will start opening your eyes and start revealing to you the mysteries of the kingdom of God. तुम्हारा दर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, तुमको तुम्हारा रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा, ये रास्ते पे मुझे चलना है. Then your vision will start getting clear and you will know that I have to take this way. तुम्हारे सामने कितना भी प्रलोभन आया तो तुम उसके प्रलोभन में पड़ोगे नहीं, क्योंकि तुमको वो दृष्टि एकदम क्लियर रहेगी कि ये रास्ता है, इधर Then नहीं it will जाना है. not matter how many temptations are brought before you, you will be able to crystal clear it, define that I have to take this path. हालेलुया. Hallelujah. शैतान यीशु को क्यों फंसा नहीं सका? क्योंकि पिता के ऊपर उसका इतना मन लगा था कि पूरा वचन से भरा हुआ था वो.
And the reason devil could not deceive Jesus is because his heart was completely on the Lord. He was filled with the Lord. That's why he could not deceive him. जो वचन पे मनन करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, शैतान उसको फंसा नहीं सकेगा. The person who loves God and his word, he meditates on his word, that person, devil cannot deceive him. ऐसा व्यक्ति शैतान के लिए खतरा है. And such person is a very big threat for the devil. और हम सब वैसे व्यक्ति हैं. And we all are like that. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? समझ में आ रहा है? हालेलुया. और एक वचन देखते हैं अपन. We'll go to one more verse. होशे का 4:6 कहता है, We'll go to Hosea chapter 4 verse 6. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा का नाश हो गई. My people are destroyed for lack of knowledge. है ना? सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं अपन. Let's read only this. बहुत बार हमने सुना रहेगा, है ना? मेरे लोगों का नाश, है ना, मेरे ज्ञान की कमी की वजह से हो रहा है. You must have heard this many times that my people are destroyed for the lack of knowledge. उधर रुक जाते हैं अपन. Let's stop there. लेकिन उसके आगे भी पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा. If you read further, we'll understand more. तूने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. आमेन. मतलब ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है. That means it does not mean that there is no knowledge. ज्ञान है, There is knowledge, लेकिन ज्ञान को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. but we have rejected the knowledge. और एक वचन पढ़ते हैं. Let's go to one more verse. नीति वचन का 1:29 से 33 तक पढ़ते हैं. Let's go to Proverbs chapter 1 verse 29 to 33. यहां पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया. 29 verse says, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़ना को तुच्छ जाना. they would have none of my counsel and despise my every rebuke. इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे Therefore they shall eat the fruit of their own way और अपनी युक्तियों के फल में अगा जाएंगे. and be filled to the full with their own fancies. क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा. For the turning away of the simple will slay them, और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश होंगे. and the complacency of the fools will destroy them. परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख में रहेगा. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. आमेन. Amen. मतलब ज्ञान उपलब्ध है, That means the knowledge is available. लेकिन अगर हमको ये इच्छा नहीं है ज्ञान के लिए, But if we don't have desire for knowledge, तो हम कैसे पा सकते हैं फिर उसको? then how can we get knowledge? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? इसलिए प्रभु के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है. That's why it's very important to be in the Word of God. वचन में जितना बने रहोगे, वचन से तुमको प्रकाशित ज्ञान मिलेगा. The more you'll start abiding in the Word, the more revelation knowledge you'll start getting. रोजमर्रा का जीवन कैसे जीना है, पवित्र आत्मा तुमको एक एक बातें याद दिलाएगा. How you should be living daily in your life, Holy Spirit will start revealing to you. जब परिस्थिति सामने आती है तो क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, इसका बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आएगा. When you come across a situation where you have to make some decision, Holy Spirit will start teaching you that this is how you should make decision. लेकिन तुम्हारा अगर मन परमेश्वर के वचन पे नहीं लगाकर दुनियादारी के ज्ञान में अगर हम लगा रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान होगा, नाश होगा. And if we are not setting our heart on the Word of God, but on the things of the world, that is not going to benefit us. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? सबको समझ में आया Is everyone understanding? है ना? कि प्रभु हम चाहता है कि हम लोग उसको जानकर आजाद हो. That means Lord wants us to know Him, and through that we will be made free. परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास करने वाला या उसका चेला जो बन रहा है वो किसी प्रकार के बंधन में रहे. It is not God's will that
none of the disciples of him should be destroyed by any means. तो तुम भी निर्णय ले लो कि प्रभु मुझे भी चाहिए कि मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहता. That means you also have to make a choice that Lord, I do not want to be in any kind of bondage. मैं आजादी में प्रभु तेरे अंदर रहना चाहता हूं. Say that, Lord, I want to live in liberty and freedom in you. हालेलुया. Hallelujah. बोलो प्रभु यीशु मैं तुझ में आजाद रहना चाहता हूं. अरे बोलो ना भाई. हालेलुया. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु तूने मुझे आजाद किया है. धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आजाद किया है. पाप की व्यवस्था से आजाद किया है. पाप की व्यवस्था से आजाद किया है. मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है. मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. इसको विश्वास करो, वचन से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो. सबसे बड़ा बात, Believe in this and love the Lord, love his word. प्रभु से प्रेम करने वाला सचमुच आशीर्वादित व्यक्ति है. And the man who loves the Lord, he is a truly a blessed man. वो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता, He will never be sad क्योंकि हर समय उसको पता है कि प्रभु उसके साथ है. because he knows that God is with him all the time. और प्रभु कभी चेंज नहीं होता. And God never changes. उसका प्रेम बदलता नहीं है. His love for you never changes. उसका प्रतिज्ञा बदलता नहीं है. His word never changes. उसका वचन कभी बदलता नहीं है. His word never changes. उसके वचन का असर कभी बदलता नहीं The है. effect of his word never changes. ऐसा प्रभु परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, क्या बात तुमको है ना असर करेगा. If such loving God is with you, then what is in this world that is giving you, you're keeping you upset? तुम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बनोगे. You will be the people who will thank the Lord in every situation. और कुछ भी निर्णय लेने से पहला तुम प्रभु के पास दौड़ कर आओगे. प्रभु ऐसा ऐसा है, देख ये मैं करने जा रहा हूं, सही है क्या, गाइड कर. And for making any decision in your life, you will run to the Lord and you'll tell him and you'll ask Lord, Lord, I am going to do this. Is it from you? Should I be doing this? हालेलुया. Hallelujah. ऐसा अगर प्रभु से प्रेम है तो तुम प्रभु के पास पहला जाओगे. If you love the Lord, then only you will be going first to the Lord. अगर प्रभु के साथ वैसा रिश्ता नहीं है तो तुम पहला काम करके आओगे, उधर फेल होने के बाद फिर आओगे, प्रभु देख ऐसा ऐसा हो गया, प्रभु अभी कुछ हो सकता है क्या. And if you do not love the Lord, then you'll start, you'll go and do your thing. When you fail, then you'll come back to Lord and then you'll start praying to God. प्रभु फिर भी गले से लगाता है, Lord will still embrace you. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमल परमेश्वर है, कृपालु है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है. Because our God is a loving God, is full of mercy and He will embrace you. लेकिन हमारा समय बर्बाद हो गया ना. But we wasted our time. नुकसान किसको हो गया. Who is at the loss? We. बुद्धिमान लोग पहला प्रभु के पास जाते हैं. People of wisdom go first to the Lord. जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हर काम में हर एक बात में प्रभु से बोलते हैं, प्रभु ऐसा ऐसा है, मेरे को लग रहा है, ऐसा करूं क्या. The people who love the Lord, they will always come to God and they will tell the Lord the entire matter and then they will take His counsel. प्रभु तेरी इच्छा है तो मैं करेगा, नहीं तो निकाह नहीं मांगता ये. They will tell Him that, Lord, if this is your will, then only I'll do it. Otherwise, I don't want this. ना अगर हम प्लान करके प्रभु इधर सिक्का मार, प्रभु नहीं मारेगा. If we go to the Lord with entire plan and just want His stamp or His signature, Lord will not do it. परमेश्वर का प्लान जो हमारे लिए है वो हमेशा टिका रहेगा. The plan of God for us will remain forever. हमारा प्लान फेल हो जाएगा Our plans will definitely fail क्योंकि हमको भविष्य मालूम नहीं. because we do not know the future. हमारा परमेश्वर को है ना प्रारंभ से ही आदि में क्या होने वाला है ना बाद में क्या होने वाला, सबका ज्ञान परमेश्वर को है. Because our God knows the beginning from the end. इसलिए उसका जो योजना हमारे लिए है एकदम सही योजना है. That is the reason His plan for us is the best plan. इसलिए प्रभु के पास जाकर बोलना, प्रभु तेरा प्लान मेरे को बता, मैं उसके ऊपर हस्ताक्षर करता हूँ, स्टैंप मारता हूँ. That's why we should go to the Lord and ask Him, Lord, what is your plan for me? And then you will stamp there and you will make your sign. तुम ऐसा आनंद में चलोगे, तुम कभी फेल ही नहीं हो जाओगे. And then you will walk in such joy and you will never fail in your life. क्योंकि प्रभु का प्लान कभी फेल नहीं होगा तुम्हारे लिए. Because Lord plan for you will never fail. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या. Are you understanding? हम सब खड़े हो जाएंगे. Let us all stand. Amen. स्वर्गीय पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए. Heavenly Father, we all thank you for this time.
पवित्र आत्मा बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके वचन से हर एक के मन को आपने प्रकाशित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Holy Spirit, I thank you that through your word you have enlightened everyone's heart. प्रभु ये कलसिया तेरा है प्रभु, यहाँ पे सब लोगों को तूने लाया है और हर एक को तू तैयार कर रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Lord, I thank you that this church is yours and you are building every person here. हर एक व्यक्ति का प्रभु तेरे ऊपर लगाव हो रहा है प्रभु, उनका मन तेरे साथ लग रहा है प्रभु, तेरा प्रेम उनके अंदर और अधिक बढ़ते जा रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that everyone is focusing on you and they started loving you. Their heart is set on you. I thank you for this. पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक हृदय को तू बदल रहा है प्रभु, हर एक जीवन को तू प्रभु जी छू रहा है प्रभु, हर एक को सही कर रहा है पिता, इसके लिए धन्यवाद। Through Holy Spirit, you are touching every heart. You are fixing everyone. I thank you, Lord. प्रभु ये कलसिया का मस्तक तू है प्रभु, और ये कलसिया बढ़ते रहेगा प्रभु, तेरे ज्ञान और पहचान में उन्नति करेगा, फलदायक होगा, और ये कलसिया से तेरी महिमा हर समय होते रहेगी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that this church is growing in your stature, in your wisdom, and in your image, Lord, and they all shall be glorifying you, Lord. प्रभु ये कलसिया में आने वाले हर एक पति पत्नी के जीवन में प्रभु आपका राज्य है, आपका अभिषेक है प्रभु, आपका प्रेम हमेशा रहेगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you for every married couple that comes to this church, Lord. Your love, your wisdom, your word, your blessing is on them, and they shall be fruitful in their life. I thank प्रभु you. यहाँ पर आने वाले हर एक युवा लोग हैं जो प्रभु जी जिनका शादी नहीं हुआ है, युवा युवती जो भी लोग हैं प्रभु, वो सब प्रभु तेरे भय में चलने वाले हैं प्रभु, तेरे साथ उनका रिश्ता गहरा होते जा रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, for all the youth who come here. They are not married yet. They walk in your fear, and their relationship with you is getting strong, and they are being changed, Lord. I thank you for that. धन्यवाद प्रभु, यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपका दैविक आरोग्य को प्रभु जी पा रहे हैं प्रभु, उनके जीव में, शरीर में, आत्मा में प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, for every person who comes here. They walk in the divine health, and they are living in completely in divine health. धन्यवाद प्रभु, यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु आपको जानकर प्रभु हर बंधन से छुटकारा पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that every person coming here, they are knowing you, and through that they are being free from their bondage. हर एक का दर्शन प्रभु जी क्लियर होते जा रहा है, हर एक व्यक्ति चेला बनने के लिए प्रभु कलश में आ रहा है प्रभु, इसके I लिए thank you, धन्यवाद। Lord, that every person is having clarity in their life, and they are coming here to be your disciples, Lord. धन्यवाद प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक और अग्नि के द्वारा प्रभु ये पूरा कलश को आप चला रहे हो प्रभु, तैयार कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that through your spirit and your spirit anointing fire, you are leading this church and you are transforming them, Lord. प्रभु आपका वचन का प्रेम, आपका वचन का प्रकाशन और वचन का सत्य प्रभु हर एक के अंदर आप डाल रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that the love for your word, the light of your word, the revelation of your word, you are bringing in people's life. धन्यवाद करते पिता, I thank you, Lord. जो काम तूने हम सब के अंदर शुरू किया है आप पूरा करोगे पिता, इसके लिए I धन्यवाद। thank you, Lord, for the work you have begun in us, you shall complete it, Lord. धन्यवाद करते प्रभु, Thank you, Lord. सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता, We give you all glory, honor, and praise, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं, Jesus' name we all pray. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आखिरी गीत गाएंगे। Let us sing the last hymn. अक्टूबर में किसका बर्थडे है, कृपा करके सामने आएंगे। किसका है? सुनित्रा, अच्छा, और किसका है? हाँ उसका भी है। सिर्फ सुनित्रा का है, और कोई है? किसका? हाँ किसी का एनिवर्सरी है? एनिवर्सरी अक्टूबर है में? क्या किसी का? शादी का सालगिरह या शादी जुड़ा है तो भी ठीक है, हम लोग सुनित्रा के लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर अपने हाथों को बढ़ाएंगे। स्वर्ग पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु सुनित्रा के लिए प्रभु, वो आपकी बेटी है, ये जगत को बनाने से पहले आपने उसको चुना है प्रभु, आपका अभिषेक उसके जीवन में है प्रभु, आपने उसको प्रभु जी चुनकर आपकी महिमा के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपका बुद्धि ज्ञान और समझ में प्रभु और गहराई से वो बढ़ते जाए प्रभु, उसका जीवन फलदायक हो, आशीर्वादित हो प्रभु, जहां कहीं भी वो जाए प्रभु एक गवाह बनकर रहे प्रभु, और उसके द्वारा आपकी महिमा हर जगह होने पाए प्रभु। हम पूरी कलश से मिलकर यीशु के नाम से उसको आशीर्वादित करते प्रभु, वो और उसका घराना यीशु के नाम से आशीर्वादित हो प्रभु, इसके घराने से प्रभु बड़े बड़े सेवक निकले प्रभु, और प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने पिता। आपके ज्ञान पहचान में ये प्रभु जी परिवार आशीर्वादित हो और उसमें बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुनित्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड हैज ब्लेस्ड यू, God has blessed you. Happy birthday, dear Sunitra. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday.
हालेलुया। हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। स्तुति और गम में नाम हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। आमीन।